everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach and spoken English course intermediate level में once again you all are welcome. Now in conversation practice, today we are going to learn about the conversation that goes between a customer and a customer relationship officer or a customer relationship representative. Okay, now conversation with customer service representative. So there are a lot of times and these days we buy a lot of things online, है ना, हम बहुत कुछ ऑनलाइन लेते हैं एंड समटाइम्स अगर हमने कोई शॉप से भी लिया हुआ है, चीज़ें ठीक से नहीं चलती एंड वी वांट टू इधर रीप्लेस इट और वी वांट टू प्लेस अनदर ऑर्डर और वी वांट टू जस्ट कंप्लेन बिकॉज द थिंग इज जस्ट नॉट वर्किंग फाइन. अब यार ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि तारीफ करने के लिए कि अरे आपका सामान तो कितना अच्छा है, कोई कॉल नहीं लगाता. बहुत ही ऐसे एक दो कॉल्स होते होंगे. मेजरली इट्स अ कंप्लेन कॉल. समथिंग इज नॉट वर्किंग फाइन, समथिंग हैज नॉट बीन डिलीवर्ड और समथिंग हैज बीन डिलीवर्ड in a very wrong way, or maybe the delivery boy was not good. Anything, it can be anything, but yeah, usually complaints. So जब अब आप कॉल करते हो, so obviously I understand that you have an option to talk in Hindi, but here you are learning how to talk in English. So please do not write मैम हम तो हिंदी में बोल देंगे. आप बिल्कुल बोल सकते हैं. They give you an option कि आपको हिंदी चूज करना है या इंग्लिश चूज करना है, but here I'm saying you are learning spoken English ना. You are here with me for a reason. So that's why we are going to understand how to interact, have a conversation with a customer सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ऑन फोन और इन पर्सन एनीवे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले जैसे ही हम कॉल करते हैं, इफ़ यू आर कॉलिंग अ CSR विच इज़ अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, सो दे थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड देन दे आस्क यू हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, मतलब आज मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ. हाई, आई रिसेंटली परचेज्ड अ माइक्रोवेव ओवन from your store and I'm experiencing some issues with it. So मैंने recently आपके store से एक माइक्रोवेव ओवन खरीदा, मुझे उसमें कुछ issues आ रहे. Now obviously instead of this you can have any other item, right? It can be earrings, it can be refrigerator, it can be an air conditioner or anything. और आपने क्या बोला, मुझे उसमें कुछ इश्यू आ रहा है. नाउ देयर आर पीपल जो पहली लाइन में इश्यू भी बता देते हैं या ये बोल देते हैं दैट आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद द डिलीवरी और आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद द वे एवरीथिंग वाज हैंडल्ड. इट कैन बी लाइक दैट. CSR ने क्या कहा, ऑफ कोर्स दे आर सपोज टू बी पोलाइट. इट इज देयर इन देयर लाइक यू नो KRA. दे हैव टू बी लाइक पोलाइट. I am sorry to hear that. मुझे सुन के काफ़ी बुरा लगा. Can you please provide me with your purchase details? क्या आप मुझे purchase details, मतलब वो पहले पूछते हैं क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, right? So purchase details बता सकते हैं, description of the problem. तो आप अपना purchase details बता दो और अपना problem का description भी बता दो. Sure. My name is, then you will state your name. My name is this and I bought the microwave last week from your store at DB Mall. Last week मैंने आपके स्टोर से DB Mall में जो आपका स्टोर है वहाँ से एक माइक्रोवेव लिया है. So usually now they ask for कि आपके पास जो होगा इनवॉइस नंबर होगा, मतलब जो भी आपको इनवॉइस दिया गया होगा, बिल दिया होगा, उसमें आपको इनवॉइस नंबर दिया होगा, ठीक है. ऑल्सो जो माइक्रोवेव है उसका भी एक नंबर होता है, तो वो नंबर भी वो लोग आपसे मांगते हैं. सो दे आस्क यू फॉर दीज डिटेल्स एंड देन you provide these details basically. Also now you remember CSR ने पूछा था प्रॉब्लम क्या आ रही है. The issue is that it's not heating up. फिर आप अपना इश्यू बताते हो that the issue is that it's not working fine or it is creating problems or it is not getting like I'm not able to start it or anything. So here the issue is that it's not heating the food properly even after following the instructions carefully. So CSR ने क्या कहा, I understand your concern, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ. I apologize for the inconvenience caused. ये जो आपको परेशानी हुई है इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ. Let me check our records and see what we can do to assist you. मुझे अपने records चेक कर लेने दीजिए और मैं देखता हूँ कि मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ. So CSR ने पहले चेक किया, वो आपको होल्ड तो कराते ही है. Now he is back and what did he say? Thank you for your patience. Since the microwave is still under warranty, अब क्योंकि माइक्रोवेव जो अभी आपने खरीदा है वो अभी भी वारंटी में है, so we can arrange for a technician
टू इंस्पेक्ट इट, तो हम जो है आपके लिए एक टेक्नीशियन भेज सकते हैं जो वो उसको पूरा चेक करेगा एंड प्रोवाइड नेसेसरी रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट इफ नीडेड, और वो उसको नेसेसरी रिपेयर्स देगा, मतलब उसमें जो भी चेंजेस करने हैं उसको सही करना है वो कर देगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो पार्ट्स को अगर कुछ रिप्लेस करना है या पूरा का पूरा माइक्रोवेव रिप्लेस करना है तो वो कर देगा। वुड यू प्रेफर, अब आपको उसने दोनों ऑप्शन दे दिए, ठीक है, या तो आप सही करवा लो या तो आप पूरा का पूरा माइक्रोवेव चेंज करवा लो। सो वुड यू प्रेफर अ टेक्नीशियन विजिट और वुड यू लाइक टू रिटर्न द प्रोडक्ट फॉर अ रिप्लेसमेंट? क्या आपको एक टेक्नीशियन विजिट चाहिए कि बंदा आपके घर आए और सही करके चले जाए, या आप चाहते हो कि आपको रिप्लेस करके दिया जाए? सो लेट्स से दैट यू सेड कि आप मुझे रिप्लेस करके दो, तो बात खत्म हो जाती है, ठीक है, आपको रिप्लेस करके दे दिया जाएगा, आपके साथ 7 दिन के अंदर या 12 वर्किंग डेज के अंदर पिक भी कर लेंगे और डिलीवर भी कर देंगे। हियर यू हैव सेड आई थिंक अ टेक्नीशियन विजिट वुड बी बेस्ट। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे टेक्नीशियन की विजिट दे दें, ठीक है। ऑलराइट, आई विल शेड्यूल अ टेक्नीशियन टू विजिट योर एड्रेस एट योर कन्वीनियंस। तो ठीक है, आपकी सुविधा के हिसाब से, योर कन्वीनियंस मतलब एट योर कन्वीनियंस का मतलब होता है आपकी सुविधा के हिसाब से, तो आपकी सुविधा के हिसाब से मैं एक टेक्नीशियन को आपके घर में विजिट करने के लिए भेज दूंगा। Could you please provide me with your address and contact details? तो एक बार आपके, अच्छा यूजुअली क्या होता है, ऑब्वियसली क्योंकि हम उनसे खरीद चुके हैं तो हमारा एड्रेस उनके पास होता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, सो दे जस्ट कन्फर्म, ओके, सो कुड यू प्लीज कन्फर्म मी विद लाइक कन्फर्म द डिटेल्स, तो आप ये भी बोल सकते हो। सो आपने बता दिया श्योर माई एड्रेस इज दिस एंड यू कैन रीच मी, मतलब हियर यू आर टेलिंग योर फोन नंबर। सीएसआर ने क्या कहा, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग द डिटेल्स, मतलब इन डिटेल्स को प्रोवाइड करने के लिए थैंक यू। आई हैव स्केड्यूल्ड अ टेक्नीशियन विजिट, अब वो डिटेल्स देगा कि मैंने एक टेक्नीशियन विजिट जो है वो इस डेट पे और इस टाइम पे रख दी है। इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन असिस्ट यू विद, एंड द लास्ट क्वेश्चन दे ऑलवेज आस्क, क्या मैं आपकी कोई और सेवा कर सकता हूँ? इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन असिस्ट यू विद? नो, दैट वुड बी ऑल, है ना, नो थैंक यू, no that would be all, I think I'm done, you can say anything, thank you for your help, and here you are like clear, ठीक है, चलो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, you are welcome। If you have any further questions or concerns, feel free to connect with us or contact us. Have a great day. So what did you say? Thank you, you too, goodbye, and there was a goodbye. अब of course this conversation was just a sample conversation. Conversation बहुत अलग अलग हो सकती है, but what I want is now to practice this conversation. Think of different scenarios. घर का पंखा नहीं चल रहा है, या ओला में जो है उस बंदे ने बिना मतलब के पैसे काट लिए. There can be 10,000 things that can go wrong. So think of these scenarios, and now when you want to complain, so let's say कि CSI के dialogues वैसे ही हैं, आप अपने dialogues change करो. आप देखो आपको कैसे डिटेल्स देनी है, एंड ट्राई टू रिपीट इट, ट्राई टू रिकॉर्ड योर वॉइस सो दैट यू अंडरस्टैंड आप किस तरीके से बोल रहे हो. गाइज, दैट इज द ओनली वे टू प्रैक्टिस. हियर आई एम गिविंग यू दीज सैम्पल कॉन्वर्सेशन सो दैट यू कैन प्रैक्टिस. इफ यू वॉन्ट, देयर इज नो पॉइंट. सो प्लीज मेक श्योर यू प्रैक्टिस. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर एज कॉन्फिडेंस as I am, like when I'm talking to them, because there's no difference between you and me. We are all like humans. So ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को बहुत अच्छी आती है और आपको थोड़ी कम आती है ना. All you need is a little practice. That's it. ठीक है, चलिए, thank you so much. Here we are done, and now we are going to see कि अगर मुझे let's say that I'm extremely angry with the person, ठीक है, ये तो मैंने आपको एक सैम्पल कॉन्वर्सेशन दे दिया. Now I'm giving you some sample sentences. आपका दिमाग है बहुत तरीके से खराब, ठीक है, तब आप क्या बोलोगे? So I am calling to raise a complaint against the microwave oven I have received from your company. मैंने कॉल किया है इस चीज़ के लिए. I am utterly disgusted. भाई मैं आपको बता रही हूँ उस सिनेरियो के बारे में जब ना चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई हैं. I am utterly disgusted मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा तरीके से परेशान हो चुकी हूँ by the level of service I have received from your company. तुम्हारी कंपनी से जिस लेवल की सर्विस मिली है ना, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ. I need a resolution to this problem immediately. मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी के अभी चाहिए. I am sick and tired of raising the same concern over and over again. अगर आपने एक बार कंप्लेन करी, दूसरी बार करी, तीसरी बार करी, तो आप क्या बोलोगे? मैं परेशान हो गई हूँ एक ही कंप्लेन को बार बार कर करके. I am sick and tired मतलब मैं परेशान हो चुकी हूँ, दुखी हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ एक ही काम करके. I am running out of patience now. उसने बोला मैम it will take a few days.
ने बोला मैं ऑलरेडी 1.5 महीने से वेट कर रही हूँ, आई एम रनिंग आउट ऑफ पेशेंस, मतलब मेरे सब्र का इम्तिहान, मतलब मेरा सब्र का बांध अब टूटने वाला है। प्लीज प्रोवाइड अ टाइमलाइन फॉर व्हेन दिस इश्यू विल बी रिसॉल्व। ने बोला नहीं मुझे तो टाइमलाइन बताओ सर, क्या है आप मुझे ये जो आश्वासन पे आश्वासन दे दो इससे काम नहीं चलेगा, मुझे तो आप टाइमलाइन बताओ कि कब मेरी ये प्रॉब्लम खत्म होगी। आई एक्सपेक्ट टू हियर बैक फ्रॉम यू सून। और अब मैं चाहती हूँ कि आप फटाफट मुझे बताओ कि भाई कब होगा, और मुझे खुद कॉल करो और मुझे बताओ। सो दीज आर सम एजिटेटेड वेज, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है और आपको कुछ कहना है। सो यू सॉ that you can create so many sentences here. So what you have to do is just practice. ठीक है? Thank you so much for watching this video. And now if you wish कि आपका spoken English का जो course है वो complete हो जाए with all the sections like vocabulary building, reading comprehension, then we have conversation practice, then we have grammar sessions, and of course don't forget quick bites. So if you wish कि आपका spoken English course बहुत अच्छे से complete हो जाए, so you will have to buy the subscription. The link for the same is there in the description box. And once you do that, so उसके बाद क्या करना है, सिर्फ बहुत सारी पढ़ाई करनी है, एंड ट्रस्ट मी इंग्लिश इज गोइंग टू बी सो ईजी फॉर यू, यू आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्लुएंट. So what are we waiting for? Just buy the subscription and start learning now.